Good morning students. Today we will discuss about the new chapter, our environment. In this chapter we will discuss about pollutants and ecosystem. First of all, what is our environment? If we talk about the environment, then we find that the physical surrounding that encloses the living things and non-living things is known as environment. Students, a question arises that what happens when we add our waste to our environment. बच्चों, हम जानते हैं कि जब हम अपने वेस्ट मटेरियल्स को इन्वायरमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट होता है. एंड दिस पॉल्यूशन इज ऑफ मेनी टाइप्स. पॉल्यूशन आर ऑफ मेनी टाइप्स लाइक वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाट अबाउट पॉल्यूशन? व्हाट इज पॉल्यूशन? The undesirable changes that occur in our environment is known as pollution, and the harmful substances which contaminate to our environment is known as pollutants. Pollutants. Now, if we talk about pollutants, then we find that pollutants are of two types. First one is biodegradable pollutants, and second one is non biodegradable pollutants. There are two major types of pollutants. First one is biodegradable pollutants and second one is non-biodegradable pollutants. Now we are going to talk about the biodegradable pollutants. Biodegradable pollutant एक ऐसा pollutant होता है जो माइक्रोब्स के द्वारा माइक्रोबियल एक्शन में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर डिकम्पोज किया जाता है. ऐसा पॉल्यूटेंट आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाता है. द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स इन माइक्रोबियल एक्शन इनटू द सिंपलर form that is known as biodegradable pollutants. For example, wood, peel, cotton, remaining parts of plants and animals, remaining parts of plants and animals एटसेट्रा. और भी बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आपके हो सकते हैं. नाउ सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दोज पॉल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द माइक्रोब्स in microbial action, that is called as
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, यानी ऐसे मैटर, ऐसे मटेरियल, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनको माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, and a very famous non-biodegradable pollutant, that is DDT, etc. DDT, dichloro-diphenyl trichloroethane. These are the examples of non-biodegradable pollutants. Students, these are the pollutants which contaminate to our environment and cause pollution. Now in this section we are going to discuss about ecosystem and what are its components. So we will discuss about ecosystem. The term ecosystem was first time given by A.G. Tansley in 1935. And the interconnection between living things and non-living things in an environment is known as ecosystem. If we talk about the component of ecosystem, then we find that there are two components. There are two components of ecosystem. First one is abiotic component and second one is biotic component. There are two types of component of an ecosystem. First one is biotic component and second one is abiotic component and second one is biotic component. So one by one we will discuss about these components. First one is abiotic component. Abiotic components. This is the A part of an ecosystem. What about abiotic component? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, they will form abiotic component of the ecosystem. So the all non-living things of an ecosystem forms abiotic component of that ecosystem. For example, air, sand, water, humus, soil, etc. These are the abiotic component of the ecosystem. Now second component is biotic component. Yes, the all
living things of an ecosystem forms biotic component of that ecosystem. जितने भी लिविंग थिंग्स किसी भी इकोसिस्टम के अंदर होते हैं वे सभी बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो सभी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं. एंड बायोटिक कंपोनेंट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. Biotic components. Biotic components are divided as producers. Producers are those living things who synthesize their own food in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. For example, green plants and blue-green algae. These are the producers. यानी ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स. बायोटिक कंपोनेंट के ऐसे पार्ट्स जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, ऐसे कंपोनेंट कंज्यूमर्स कहलाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर कहलाते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं. दे आर कॉल्ड एज consumers. Consumers are of generally three types: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So consumers are of three types: primary consumers, primary consumers are those consumers who consume green plants or who depend upon green plant for their food. They are called as primary consumers, and generally these primary consumers are herbivorous. Now second type of consumer is secondary consumers. These consumers depend upon the primary consumer for their food. They are called as secondary consumers. यानी ऐसे कंज्यूमर जो अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं. एंड दीज कंज्यूमर्स ऑफ बिलो carnivorous. Now the third type of consumer is tertiary consumers. Those consumers who depend upon secondary consumer for their food is known as tertiary consumer. ऐसे कंज्यूमर जो अपने फूड के लिए सेकेंडरी पर डिपेंड होते हैं दे आर कॉल्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल
टॉप कार्निवोरस, ऐसे कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। These are the types of consumers. Sometimes in an ecosystem एक चौथे तरह का कंज्यूमर भी हो सकता है, दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ओके, सो क्वाटरनरी विल डिपेंड अपॉन द टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्वाटरनरी जो होंगे वो अपने फूड के लिए टर्शियरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। ओके, सो प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट इज दैट इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स बच्चों, they play very important role in an ecosystem. Actually decomposers, what is the function of decomposers? Those biotic components who decompose the complex organic food material into simpler inorganic form, that is known as decomposers. For example, bacteria and fungi. Bacteria and fungi are the decomposers. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि why decomposers are assumed as cleaner of the ecosystem. So इनका काम क्या होता है कि ये dead and decaying parts को किसी भी इकोसिस्टम के उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म। सो दे आर कॉल्ड एज स्वीपर ऑफ द इकोसिस्टम। सो लेट अस ब्रीफ इकोसिस्टम। फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टांसले इन 1935. देयर आर टू कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक। अबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे विल फॉर्म अबायोटिक, एंड जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे आर बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट तीन भागों में बांटा गया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। नाउ classification. Classification of ecosystem. First one is on the basis of एरिया। अगर हम एरिया के बेसिस पर बात करते हैं तो इकोसिस्टम दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। ऐसा इकोसिस्टम हमारा माइक्रो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे पॉन्ड का इकोसिस्टम, जैसे फील्ड का इकोसिस्टम, दीज आर द माइक्रो इकोसिस्टम। एंड मैक्रो इकोसिस्टम जो लार्ज एरिया के अंदर होता है, ऐसा इकोसिस्टम मैक्रो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, दीज आर द मैक्रो इकोसिस्टम। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। If we talk about the basis of nature, then we find that ecosystem are of two types. First one is natural ecosystem and
सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचर के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो दो तरह का यहाँ पर भी पाते हैं। पहला नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको प्रकृति ने बनाया, जो नेचुरली अकर्ड है, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। लाइक आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। एंड आर्टिफिशियल, जिसको हम बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे फेमस आपका फेमस एग्जांपल एक्वेरियम ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या पॉन्ड्स को भी हम छोटे लेवल पर बना सकते हैं, तो पॉन्ड भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर एक्वेरियम से हमको एक क्वेश्चन याद आ गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो पॉन्ड्स या लेक्स होते हैं, इनको हमें साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एक्वेरियम इज़ नीडेड टू क्लीन। सो हम जानते हैं एक्वेरियम एक ऐसा इकोसिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसमें डिकम्पोजर्स नहीं होते, इसलिए हमको इसके अंदर जो उपस्थित इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, जो पॉल्यूशंस होते हैं, उसको क्या करना होता है, खुद से वॉश करना होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। जबकि पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं, और उनके अंदर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनको जो है वो क्लीन नहीं करना पड़ता। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनसे रिलेटेड जितने भी इंटेक क्वेश्चन है बुक पे, उसको सॉल्व करिए। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन यू आस्क मी in comment box. Okay, thank you.